Good morning, students. How are you? I hope you all are staying safe and healthy at home. Okay, children, I am Misha Tak from Saraswati Group of Education, and today we are meeting for our revision session of chapter number 1, numbers up to 100. Yes, this is the revision session because you are going to have exams in few days. So we need to revise the chapter what we have learned. Okay, so from beginning, let us start the chapter. So first of all, what are the things that we are going to learn in this chapter? The points are, firstly, before, after and between numbers, then numbers and their number names, then cardinal and ordinal numbers, and comparison of one digit number as well as comparison of two digit numbers. These are all the things that we are going to revise today. Okay, so first of all, let us start from before, after and between numbers. Okay, children, you already know before means the previous one, मतलब जो आगे का नंबर है वो, and after means पीछे का नंबर, the number that comes after the number. Okay, और between means दो नंबर के बीच में जो नंबर आता है, that is known as between number. Okay, you already know this thing. So based on that, I have taken some of the questions so that you can understand the concept of before, after and between numbers. Okay, so let's begin. The first question is dash 77, 78. Now what does it say? In exam you will be getting few options. It could be ABC or it could be AB, A, B, C, D, any of the options. Okay. अब आपको इसमें दिख रहा है कि आगे डैश है, इट मीन्स आगे अगर डैश है तो ये क्या हुआ? बिफोर. ओके, सो यहाँ पे आपको आगे का नंबर लिखना है विच कम्स बिफोर 77 एंड 78. यू आर हैविंग फ्यू ऑप्शन 79, 76 एंड 75. व्हाट कम्स? यस, 8, 7, उसके पहले 6. सो व्हाट वी विल राइट हियर? 76. So what will be the answer? A, B or C? The answer will be B. So you will have to tick against B. Okay. एग्जाम में आपको MCQ बेस्ड ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे आपको लास्ट ईयर भी होता था. एंड यू ऑलरेडी नो MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द वे आई कैन आस्क. ये जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही पूछूंगी, बट इट्स वन ऑफ द वे आई कैन आस्क. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. Does 68 comes before 69? 68 69 से पहले आता है. True or false? You also know what is true and what is false. True मतलब right, false मतलब wrong. तो क्या आपको क्या लगता है 68 before आता है 69 के? Yes or no? It's a yes. Okay, yes means true. So the answer is true. तो हम लोग किस पे टिक करेंगे? True. क्योंकि ये बिफोर है. बिफोर मतलब उसके पहले का, 68 से पहले 67 और 68 के बाद 69. ओके, does 68 comes before 69? Yes. Now next is 95-97. 95 डैश, बीच में डैश आया मतलब what does it mean? It means the between number. ओके, दो नंबर के बीच वाला जो नंबर है उसको between number कहते हैं. अब क्या 95 और 97 के बीच में 94 आता है या 96 आता है या 98 आता है? कौन सा नंबर आता है? 5 के बाद 6. सो इसमें 6 वाला कौन सा है? दिस. सो क्या आएगा? 96. सो वी विल अंडरलाइन B. Sorry, I have not written B over here. It's B and this is C. So what will be the answer? B. Similarly, D. Does 56 comes between 55 and 58? 56 है वो 55 और 58 के बीच में आता है. थिंक करो, 55 के बाद तो 56 आता है, उसके बाद 57 आता है, उसके बाद 58 आता है. तो उन 3-4 नंबर के बीच में ये नंबर आया. सो व्हाट विल बी द आंसर? ट्रू. क्योंकि 55 के बाद 56, उसके बाद 57 और उसके बाद 58. Okay, so this will be the true. Okay, moving on to fourth question. What comes after 65? 65 के बाद क्या आता है? 66, 68,
66, 67, 64, 63। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सिंगल डिजिट ही दूं, मैं आपको ऐसे ऐसे 2 डिजिट वाले भी पूछ सकती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि 65 के बाद 66 तो आता है, और 66 और 68 नहीं आता, उसके बाद क्या आएगा 67। सो विच आंसर विल बी राइट? बी, बिकॉज 65 के बाद इट कम्स 66 एंड 67। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट कम्स आफ्टर 43? आफ्टर मतलब उसके बाद, 43 के बाद क्या आता है? 44, 45, 44 या 42? कौन सा आएगा? 3 के बाद 4, so it will be 44. So what will be the answer? B. Okay, so this is the way I can ask questions in exam. True or false भी आ सकते हैं, या ऑप्शंस आपको दिए गए उसमें से भी आ सकते हैं। ऐसे जो मैंने दिखाया 2 नंबर्स वाले भी मैं आपको पूछ सकती हूँ। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर वर्क अकॉर्डिंगली। अगर आपको बिफोर, आफ्टर और बिटवीन नंबर्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको बहुत इजीली ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर नेम्स एंड नंबर्स ऑल्सो। ओके, I already told you that you have to remember the number names up to 100. Right? This chapter is numbers up to 100. तो आप 100 तक के नंबर नेम्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी उसके बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। ओके, सो लेट अस रिवाइज दोज थिंग्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नंबर फॉर 63? यहाँ पे मैंने नंबर नेम लिखा है 63। अब मुझे अगर नंबर नेम याद होगा तो उसके ऊपर से मैं नंबर डिराइव कर सकती हूँ, पर अगर मुझे यही नहीं पता कि ये क्या लिखा है तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेम्बर नंबर्स एज वेल एज नंबर नेम्स बोथ। दिस इज रिटन 63। तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि इन तीनों में से विच इज 63। दिस इज 65, दिस इज 64 एंड दिस इज 63। सो व्हाट विल बी द आंसर? सी। Similarly, second one, what is number name for 48? 48 का नंबर नेम क्या है? यहाँ पे इसका अपोजिट पूछा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है FORTYEIGHT 48. Second is FORTYNINE. NINE means 9. So this is 49. And what is this? FOURTYEIGHT. अब ये भी थोड़ा 48 जैसा लग रहा है, ये भी 48 लग रहा है, तो ए और सी में डिफरेंस क्या है? कैन यू ऑब्जर्व? यस, द डिफरेंस इज द स्पेलिंग। आप ये स्पेलिंग चेक करो और ये स्पेलिंग चेक करो। 40 की स्पेलिंग होती है FORTY। अगर आपने इसको टिक कर दिया तो योर आंसर विल बी रॉन्ग, बिकॉज दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। सो व्हाट यू विल टेक? 48. That is why spelling remembering for number names is must. Okay, now moving on to the last. How do we write 25 in numbers? Similarly, यही चीज जो 25 नंबर नेम है, अगर आपको नंबर नेम नहीं आता होगा तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, और अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे then you will not be able to answer the question. Okay, so this is 25. Which is the answer? This is 23, 28 and 25. What will be the answer? Answer will be C, because the number is 25. Okay, so anything out of this can be asked as an MCQ. मैं कोई भी स्पेलिंग्स पूछ सकती हूँ और उसके ऑप्शन दे सकती हूँ, या नंबर्स पूछ सकती हूँ और स्पेलिंग के ऑप्शंस दे सकती हूँ. You have to identify the correct answer. Okay, so these two topics we have learned. Now moving on to the next two topics. Children, now we are going to revise comparison of numbers as well as cardinal and ordinal numbers. Okay, so first let's start with comparison of numbers. Now you already know that we have learned comparison of 2-digit numbers and 1-digit number also. जब आपके पास दो 1-digit number compare करने हो तो आपको पता है कि जो बड़ा नंबर है उधर ग्रेटर देन की साइन जाएगी, जो छोटा नंबर है उधर लेसर देन की साइन जाएगी. एंड यू ऑलवेज नो दैट द स्मॉलर नंबर ईट्स द बिगर नंबर. Remember you learned last year when crocodile opens the mouth and closes the mouth. Okay, so the same thing applies over here.
एंड नाउ व्हेन यू कंपेयर 2-digit नंबर, जब आप 2-digit नंबर कंपेयर करते हो देन ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू कंपेयर फ्रॉम टेंस प्लेस। टेंस की प्लेस से आप पहले कंपेयर करोगे। अगर टेंस की प्लेस पर जो नंबर बड़ा है वो बड़ा होगा और अगर टेंस की प्लेस पर नंबर छोटा है तो वो छोटा होगा। ओके, सपोज आई एम कंपेयरिंग 19 and 18. Okay, 19 and 18 you can see on the board. I will write over here. Can you see everybody? I am writing over here. Okay, 19 18. तो सबसे पहले मैं टेंस की प्लेस कंपेयर करूंगी। बोथ आर विजिबल एट टेंस प्लेस, राइट? बोथ आर 1. तो क्या करूंगी, अगर सेम आई तो आई विल कंपेयर एट वंस प्लेस। 9 और 8 में कौन सा बड़ा है? 9. सो 19 विल बी ग्रेटर देन 18. और आप बोल सकते हो 18 is, you can say 18 is less than 19. Okay, this is the way. Now this is for comparing the number of 2 digits. Similarly, अगर आपको 2 digit पे यहाँ पे अगर मैं 28 और 18 लिखती हूँ और ये आपको कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे, टेंस की प्लेस पर देखोगे। टेंस पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब टेंस वाला जो बड़ा है तो दिस नंबर इज ग्रेटर। तो हम क्या लिखेंगे, 28 इज ग्रेटर देन 18 और 18 इज स्मॉलर देन 28, राइट? दिस इज द वे दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न। ओके, और वन मोर, अगर आपको टेंस की प्लेस पर भी 2 है दोनों नंबर में और इधर वंस की प्लेस पर मैं 3 लिखती हूँ, इधर वंस की प्लेस पर मैं 5 लिखती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप दोनों टेंस पे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे दोनों में 2 है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है? सो यू हैव टू शिफ्ट टू वंस प्लेस। और वंस की प्लेस पर कौन सा बड़ा है, ये या ये? तो क्या होगा, ये छोटा हुआ। सो व्हाट यू विल राइट, 23 is less than 25, or you can say 25 is greater than 23, right? And equals to तो आपको पता ही है कि जब भी कोई नंबर सपोज 27, यहाँ पे भी 27 है, तो what does it indicate? It says 27 is equal to 27 because दोनों नंबर ही सेम है। Okay, so based on this, let us solve some of the questions for related to the topic. Okay, now the first question is which is greater in दो नंबर्स आपको दिए गए हैं 9 और 8, इसमें से ग्रेटर कौन सा है? ऑप्शंस आर A 9 and B 8. What do you think? Yes, option A is greater obviously because 9 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, so answer will be 9. Similarly, अगर मैं 3 नंबर्स के कंपैरिजन करती हूँ, नंबर इज 12, 18 एंड 23, 3 नंबर्स आते हैं और उसमें से मुझे पूछा गया है विच इज ग्रेटेस्ट, सो मैं क्या दूंगी, 23, 18 या 12, तीनों में से कौन से ग्रेटेस्ट है? कैसे कंपेयर करेंगे? वी विल फर्स्ट सी द नंबर एट टेंस प्लेस। यहाँ पे 1 है टेंस में, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, सो व्हाट डज इट मीन्स, 2 इज ग्रेटर देन 1, सो 23 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है? दिस इज द वे यू विल टेक। सिमिलरली विच इज स्मॉलर 45 और 54? नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों नंबर्स आपको दिखने में सेम दिखेंगे। स्मॉलर पूछा है तो आपको पहले कंपेयर करना है टेंस की प्लेस पर, 4 छोटा है या 5 छोटा है? ऑब्वियसली 4 छोटा है, तो छोटा नंबर कौन सा होगा, 45, सो व्हाट विल बी द आंसर, 45. एंड लास्ट इज 65 ग्रेटर देन 78? ये ग्रेटर देन की साइन वाला है, 65 जो है वो 78 से बड़ा है। लेट अस सी कंपेयरिंग ऑन टेंस प्लेस, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, नो ये 6 तो छोटा हुआ और यहाँ पे साइन तो ग्रेटर देन की है, तो आंसर क्या होगा, नो, एंड नो मीन्स फॉल्स, सो हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स. ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू विल डील विथ कंपेरिजन ऑफ numbers. Always compare tens place, and if the digits at tens place are same, then move on to ones place and find the
आंसर। और यही चीज आपको ऑप्शंस में भी दी सकती है कि सर्कल द ग्रेटर नंबर, सर्कल द स्मॉलर नंबर, जो आपकी एक्सरसाइज में ऑलरेडी है। वैसे भी सेम ये चीजें एग्जाम में आ सकती है। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज ordinal as well as cardinal numbers. I already told you that ordinal number means the number that shows the position or the place of the numbers. अगर मैं बोलती हूँ कि एग्जाम में आपको 5th रैंक आया, इसका मतलब क्या, वो जो 5th वर्ड है that describes the place, कि आपको एग्जाम में 5th रैंक आया, 5 नंबर आपको एग्जाम में मिला, that describes the place, राइट। और उसको ही हम लोग ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। द नंबर दैट डिस्क्राइब्स द प्लेस और पोजीशन ऑफ द नंबर इज नोन एज ऑर्डिनल नंबर। एंड सिमिलरली कार्डिनल नंबर। व्हाट आर कार्डिनल नंबर्स? कार्डिनल नंबर्स आर द नंबर्स विच वी यूज फॉर काउंटिंग, जो रेगुलर हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, दीज आर ऑल कार्डिनल नंबर्स। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस लेट अस सी ये जो नंबर है दैट इज ऑल कार्डिनल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यही नंबर्स हम लोग ऑर्डिनली कैसे लिखेंगे? 1 का फर्स्ट हो जाएगा 1 ऊपर ST और उसकी स्पेलिंग FIRST। आपको जैसे नंबर नेम्स कार्डिनल नंबर के याद रखते हो, वैसे ही ऑर्डिनल नंबर के भी आपको नंबर नेम्स याद करने होंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। ओके, सिमिलरली सेकेंड, the spelling of second SECOND। Similarly third, 3 के ऊपर RD आएगा, THIRD। Similarly fourth, FOURTH। Then fifth, FIFTH। Then sixth, SIXTH। seventh, SEVENTH। eighth, 8 के ऊपर TH, EIGHTH। ninth, NINTH। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज NIN, नॉट NINE, यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो रहा है। देन 10th, TENTH। ओके, सो दिस इज द वे यू विल लर्न द नंबर नेम्स फॉर ऑर्डिनल नंबर्स एंड हाउ टू राइट द ऑर्डिनल नंबर्स। ये आपको ये भी आना जरूरी है। नाउ बेस्ड ऑन दिस विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। नंबर 1 इज व्हाट इज कार्डिनल नंबर फॉर 5th। अब देखो, आपको ये पता होगा कि 5TH का मतलब 5th है, तो आप इसके बेस के ऊपर आप कार्डिनल नंबर्स जा सकते हो। तो 5th इज ऑर्डिनल नंबर। अब इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, 5th द सेम नंबर, 5 और FIFTH। व्हाट विल बी द आंसर? सी, दिस इज ऑलरेडी द सेम नंबर, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये स्पेलिंग दी गई है 5th की, FIFTH। ऑर्डिनल नंबर में आप 5th कैसे लिखते हो, उसकी स्पेलिंग है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, बिकॉज क्वेश्चन में हमको कार्डिनल नंबर पूछा है, और कार्डिनल मीन्स द रेगुलर नंबर दैट यू यूज फॉर काउंटिंग। सो यहाँ पे 5 है, दिस इज अ कार्डिनल नंबर, यू कैन सी। सो व्हाट विल बी द आंसर? बी। सो चिल्ड्रन, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको नंबर नेम्स दोनों याद रहने जरूरी है, तो ही आप ये आंसर्स दे पाओगे। ओके, सिमिलरली व्हाट इज ऑर्डिनल नंबर? आपको क्वेश्चन में ये देखना जरूरी है कि कार्डिनल पूछा है कि ऑर्डिनल, अदरवाइज यू विल राइट द रॉन्ग आंसर। व्हाट इज ऑर्डिनल नंबर फॉर 9? 9 इज कार्डिनल नंबर। अब उसका ऑर्डिनल क्या होगा? सेम 9? नो, बिकॉज इट इज कार्डिनल। तो फिर ये होगा NTH 9th और 19TH। अब आपको ये सोचना है, NTH इज 9th and 19TH मतलब 19th होगा। ओके, so the answer will be B. Similarly, the last one, what is the number name for first? अब आपको नंबर नेम नहीं आता होगा तो आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैंने 3 स्पेलिंग्स लिखी है फर्स्ट की। अब जब तक आपको नंबर नेम नहीं आएगा, आप खुद कंफ्यूज होगे कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग आएगी। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेम्बर द स्पेलिंग ऑफ नंबर नेम्स। लाइक FISRT आएगा स्पेलिंग फर्स्ट का, या FIRST आएगा, या FIVST आएगा। यू हैव टू रिमेम्बर, तभी आप इस चीज का आंसर दे पाओगे। हियर द आंसर इज बी, सो आई विल टिक बी। ओके,
सो दिस इज द वे एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस इसी टाइप के आ सकते हैं या इससे थोड़े अलग भी आ सकते हैं. बेस्ड ऑन दिस यू विल बी आस्क्ड एग्जाम इन क्वेश्चंस. So this is the end of the session and I hope you understood the chapter and even revised the chapter and you will be practicing the same at home. And based on this children you will get a worksheet. आपको इसी के बेसिस पर एक वर्कशीट दी जाएगी जिसमें आपको इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं. एंड इवन आपको टेबल्स भी इस साल इंक्लूडेड हैं. सो फॉर एग्जाम 6, 7 और 8 का टेबल इज देयर. ओके, सो डोंट फॉरगेट कि 6, 7, 8 का टेबल्स दीदी स्किप करेगी. नो, शी इज गोइंग टू आस्क यू एंड दैट इज ऑल्सो आई कैन आस्क इन एनी फॉर्म, जम्बल फॉर्म्स और एनी अदर फॉर्म. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद टेबल्स ऑल्सो. Okay, so I hope you enjoyed the session and we'll be meeting back in our next session. Bye.